آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر ایران کی جنگ اسرائیل کے ساتھ آپریشن رائزنگ لائن حملہ اسرائیل نے کیا ہے، حملہ امریکہ نے کیا ہے. تو پھر آخر ایران مسلمان کنٹریز پر کیوں حملہ کر؟ اس نے قطر کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے کویت کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا. لیکن ایران کہتا ہے کہ وہ مسلمان کنٹریز پر نہیں بلکہ ان مسلمان کنٹریز کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے بیسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. drone attacks targeting a US military base. اگر ایران کی یہ بات ٹھیک ایران تو پھر یہاں پر ایک بہت بڑا کوشچن پیدا ہوتا ہے، آخر ان مسلمان کنٹریز کے اندر امریکہ کے یہ بیسز کر کیا رہے Those are US military bases, a huge presence there. اور کیوں ان عرب بادشاہوں نے امریکہ کی فوج کو اپنے ملک کے اندر رہنے کی اجازت دی؟ امریکہ کے ان بیسز کو سمجھنے کے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، all the way to World War I. World War I مسلمانوں کی طرف سے ان کی آخری سپر پاور بہت ہی بہادری سے لڑ رہی عثمانیہ خلافت، لیکن بہت بہادری سے لڑنے کے بعد World War I میں عثمانیہ خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. عثمانیہ خلافت کے ٹوٹے کی وجہ سے وہ سارے علاقے جہاں پر عثمانیہ خلافت کی حکومت تھی وہ سب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے عثمانیہ خلافت کے ہاتھ سے نکلنے لگے، اور ان سارے علاقوں کو برٹش امپائر اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے چھین لی، جس کے بعد اس پورے علاقے کو برٹش امپائر نے کنٹرول کر لیا. لیکن برٹش امپائر کو پہلے دن سے اچھی طرح پتا تھا کہ عرب کے عام مسلمان کبھی بھی کسی انگریز کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے. اسی لیے برٹش امپائر نے اب ان عرب کنٹریز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور سیکرٹ پلان بنایا. برٹش امپائر نے عرب کے بادشاہوں سے کہا کہ آپ ہی ان سارے علاقوں کے بادشاہ رہیں گے، یہاں کے مسلمانوں کے سارے فیصلے آپ کریں گے، یہاں کی سڑکیں، برجز اور بلڈنگز آپ ہی بنائیں گے، تاکہ عرب کے لوگ آپ کو ہی اپنا اصل بادشاہ سمجھیں. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوگا. تم بادشاہ صرف سڑکیں اور بلڈنگز ہی بنا سکو، لیکن عرب دنیا کی ساری فوج اور ڈیفنس ہمارے پاس ہوگا. مطلب ہماری اجازت کے بغیر تو ان بادشاہوں کی فوج کچھ نہیں کر پائے گی. It had its own king, it had its own navy, it had its own army, but the British Empire was protecting it by occupying, controlling and extracting its resources. جس کے بعد پہلی بار پوری عرب دنیا میں برٹش امپائر نے اپنی فوج کے بیسز بنائے، اور ہسٹری میں پہلی بار انگریزوں کی فوج آ کر پوری عرب دنیا میں پھیل گئی. یہ برٹش امپائر کا بہت ہی زبردست پلان تھا، کیونکہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ان کا بادشاہ ایک مسلمان اور عرب ہے، لیکن اصل میں یہ سارے بادشاہ بس پپٹس تھے، اور پوری عرب دنیا اصل میں برٹش امپائر کے انہی بیسز سے چلتی تھی. آنے والے کئی سالوں تک دنیا اسی طرح چلتی رہی، لیکن آخر دنیا میں ایک ایسا واقعہ جس سے برٹش امپائر آہستہ آہستہ ہر طرف ٹوٹنے لگا. ورلڈ وار II میں برٹش امپائر اور جرمنی کے ہٹلر کی لڑائی شروع ہوئی. یہ جنگ برٹش امپائر جیت تو گیا، لیکن اس جنگ میں برٹش امپائر کا اتنا نقصان ہوا کہ آہستہ آہستہ برٹش امپائر ٹوٹنے لگا، اور برٹش امپائر کے پاس اب اتنا پیسہ تھا ہی نہیں کہ وہ پوری دنیا میں اپنے فوج کے بیسز کو مینج کر سکے. اسی لیے آنے والے کئی سالوں میں آہستہ آہستہ برٹش امپائر مسلمان ملکوں سے اپنی فوجیں نکالنے لگی، اور آخر کچھ ہی سالوں پوری عرب دنیا برٹش امپائر کی فوج خالی ہو گئی. ورلڈ وار II کے بعد برٹش امپائر تو تباہ ہو چکا، لیکن برٹش امپائر کے بعد اب دنیا میں ایک نئی سپر پاور آ چکی تھی، امریکہ. And we will make America great again. اسی لیے ورلڈ وار II ختم ہونے سے پہلے عرب بادشاہ اب برٹش امپائر کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ میٹنگز کرنا شروع کر چکے تھے. اسی لیے برٹش امپائر کے ٹوٹتے اب برٹش امپائر کی جگہ امریکہ کی فوج آ کر عرب ملکوں میں اپنے بیسز بنانے لگے. لیکن یہ بیسز بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے اور صرف عرب کی آئل کی حفاظت کے لیے تھے. لیکن پہلے ہی دن سے امریکہ بالکل برٹش امپائر کی طرح عرب ملکوں میں اپنے بڑے بڑے بیسز بنانا چاہتا تھا.
और अमेरिका चाहता था कि जिस तरह इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर अपने इन बेसिस से अरब के बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखता था, अब उसी तरह अमेरिका अपने बड़े बड़े बेसिस बनाकर इन अरब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रख। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब अमेरिका के सामने एक ऐसा बादशाह आ चुका था जो अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। और ऑफ कोर्स ये वही बादशाह था जिसका नाम हम इस चैनल पे बार बार लेते हैं, सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अमेरिका के छोटे छोटे बेसिस को सऊदी अरब से बाहर निकलने का हुक्म दिया, जो इससे पहले उसके बाप अब्दुल अजीज ने बनाए थे। शाह फैसल की पूरी बादशाह पूरी अरब दुनिया में सिर्फ एक अमेरिका के बेस के अलावा और कोई भी बेस नहीं था। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को अचानक धोखे से शहीद कर दिया गया, शाह फैसल के बाद उसका भाई खालिद सऊदी अरब का बादशाह बना। शाह खालिद बिल्कुल भी अपने भाई की तरह नहीं था कि वो सुपर पावर अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। इसीलिए अब शाह फैसल के जाने के बाद अमेरिका आसानी से अपने पुराने प्लान पर काम कर सकता और सारे अरब कंट्रीज में अपने बेसिस बना सकता था। लेकिन हमेशा की तरह अब भी अमेरिका को एक ऐसे बहाने की जरूरत थी जिससे वो अरब दुनिया की तरफ अपनी फौज भेजे, और आखिर अमेरिका को ये बहाना मिल गया। और अमेरिका के इस बहाने का नाम था सद्दाम हुसैन। जैसे सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह बना, पहले तो वो अमेरिका और अरब के बादशाहों का बहुत क्लोज दोस्त था। बल्कि इन्हीं के कहने पर सद्दाम हुसैन ने आते ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने अगले 8 साल तक ईरान के साथ एक बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी। जंग के स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन ये जंग जीत जाए, लेकिन जैसे जैसे जंग गर्म होती गई और आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन के पास ये जंग लड़ने के लिए पैसे खत्म होने लगे। इसीलिए अब सद्दाम हुसैन अपने आप को बचाने के लिए अपने इन अरब दोस्तों से बहुत सारा कर्जा लेने लगा। ये देखकर अरब बादशाहों ने भी सद्दाम हुसैन को खुशी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा दिया। कहा जाता है ये कर्जा $60 बिलियन था। लेकिन ये सारा पैसा लेने के बाद भी 8 साल के बाद सद्दाम हुसैन ये जंग बुरी तरह हार गया। जंग खत्म होने के बाद अरब बादशाहों ने सद्दाम हुसैन से कहा कि अब तो जंग खत्म हो चुकी, तो आप अच्छे बच्चों की तरह हमारा सारा कर्जा हमें वापस दो। लेकिन ये सुनकर सद्दाम ने इन बादशाहों से कहा कि किस चीज के पैसे? ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर लड़ी और अब तुम लोग मुझसे कर्जा वापस मांग रहे हैं। मतलब सद्दाम हुसैन ने क्लियरली इन अरब बादशाहों को बता दिया कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं दूंगा। और यहाँ से पहली बार अरब बादशाहों और सद्दाम हुसैन की आपस में दुश्मनी शुरू हो गई। सद्दाम हुसैन की ये बातें सुनकर अरब बादशाहों को बहुत गुस्सा आया, बल्कि एक अरब कंट्री कुवैत के बादशाह ने सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी को गिराने के लिए अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जबरदस्ती गिराने लगा, जिससे ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगे। ये देखकर वो सद्दाम हुसैन, जो किसी जमाने में इन अरब बादशाहों का बहुत अच्छा दोस्त था, अब इन अरब बादशाहों से नफरत करने लगा। और आखिर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि अब वो कुवैत के बादशाह को सबक सिखाने के लिए पूरे कुवैत पर हमला करेगा। लेकिन हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन को सिर्फ एक चीज का डर था, और वो था सुपर पावर अमेरिका। सद्दाम हुसैन को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वो कुवैत पर हमला करे, कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका सामने आए और उल्टा सद्दाम पर ही हमला कर दे। इसीलिए हमले से पहले सद्दाम हुसैन ने इराक में अमेरिका के एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग की और अमेरिका के एम्बेसडर को क्लियरली बताया कि मैं कुछ ही दिन बाद कुवैत पर हमला करने वाला हूँ। जिस पर अमेरिका के एम्बेसडर ने जवाब दिया कि ये आप अरब बादशाहों का आपस का मसला है। और अमेरिका ने भी क्लियरली बताया कि अगर सद्दाम कुवैत पर हमला करेगा तो हम सद्दाम को नहीं रोकेंगे और हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब जब अमेरिका से सद्दाम हुसैन को इजाजत मिल चुकी थी, सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया। और आज से 30 साल पहले रात के अंधेरे में सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दी। इराक की पूरी फौज कुवैत के अंदर घुस गई। कुवैत इराक के पास एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास अपनी कोई ज्यादा फौज थी भी नहीं। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरा कुवैत फतह कर लिया। और कुवैत फतह करते ही सद्दाम हुसैन के पास कुवैत की पूरी ऑयल का कंट्रोल भी है, जहाँ हर दिन ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स बनते थे। और इस तरह सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन अरब दुनिया का
सबसे ताकतवर बादशाह बना, जिसका सदाम हुसैन और उसके बेटे जश्न मना रहे थे। लेकिन सदाम हुसैन को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे सदाम हुसैन ने कुवैत को फतह किया, इससे पहले अमेरिका ने सदाम हुसैन को कुवैत पर हमले की इजाजत देनी थी और सदाम से कहा था कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे non-violently. लेकिन जैसे ही सदाम हुसैन ने कुवैत फतह कर लिया, अमेरिका ने अचानक अपना पूरा स्टांस बदल दिया और यहाँ से अमेरिका की एक ग्रैंड साजिश शुरू हुई। अमेरिका बिल्कुल सीक्रेटली अरब के बादशाहों से मिलने लगा और उन्हें कहा कि सद्दाम सिर्फ कुवैत नहीं बल्कि कुवैत के बाद एक एक करके तुम सारों को भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाह को अपनी सैटेलाइट से तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह सद्दाम उन पर हमला करने वाला है, जिसे देखकर सऊदी अरब का बादशाह वाकई में डरने लगा। लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ था और ये सब सिर्फ अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश थी और इस तरह अमेरिका ने सारे अरब बादशाहों को अपनी चाल में फंसा दिया था। अरब के बादशाह अब अमेरिका से भीख मांगने लगे कि अमेरिका उन्हें सद्दाम हुसैन से बचाए, लेकिन अमेरिका ने इन बादशाहों के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें तब ही बचा पाऊंगा जब तुम बादशाह मुझे अरब की जमीनों पर अमेरिका की फौज के बड़े बड़े बेसिस बनाने की इजाजत दोगे। और ऑफ कोर्स सारे अरब बादशाहों ने अमेरिका के सामने अपना सर झुका दिया, जिसके बाद सबसे पहले अमेरिका ने अपना बेस सऊदी अरब में बना और सऊदी अरब को देखकर अरब के बाकी बादशाहों ने भी ऐसे ही की और इसी तरह अमेरिका ने अपना बेस कतर, बहरीन और यूएई में भी अपने बेसिस बनाए। यहाँ पर एक बात समझना लाजमी है, जिस तरह आज अमेरिका के प्रेसिडेंट पर इजराइल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसी तरह आज से 30 साल पहले भी इजराइल का अमेरिका पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। मतलब अरब दुनिया में अमेरिका के ये बेसिस सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि किसी भी वक्त इजराइल के लिए भी यूज हो सकते थे। जैसे ही अमेरिका के बेसिस तैयार हुए, अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से कुवैत में सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन भी कुछ ही दिन में कुवैत खाली करके वहाँ से वापस इराक चला गया और कुवैत अब अमेरिका के कंट्रोल में आया और अमेरिका ने कुवैत में भी अपने बड़े बड़े बेसिस बनाए। अब अमेरिका का बहाना खत्म हो चुका था और सद्दाम हुसैन कुवैत से जा चुका था, तो फिर चाहिए तो ये था कि अमेरिका अरब दुनिया से अपने बेसिस को खत्म करके यहाँ से वापस चला जाए। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया को समझ आए कि ये बस अमेरिका की एक साजिश थी और अमेरिका ने इन सबको अपनी चाल में फंसाकर हमेशा के लिए अपने बेसिस अरब दुनिया में बना दिए थे। और इसी तरह उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका की फौज अरब दुनिया में उसी तरह बैठी हुई है और अब ईरान ने अमेरिका के हर एक बेस पर हमला किया है। लेकिन आखिर ईरान को अमेरिका के इन बेसिस से प्रॉब्लम क्या है? ईरान क्योंकि पिछले 35 सालों से अमेरिका के ये बेसिस खामोश नहीं बैठे, बल्कि जिस मुसलमान कंट्री ने भी इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की, अमेरिका इन्हीं बेसिस से उन सबको तबाह करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज से 25 साल पहले जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से अफगानिस्तान पर हमला कर दी और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वहाँ से हटाकर अमेरिका ने वहाँ भी अपना एक नया बड़ा बेस बनाया, बगराम एयर बेस। और अफगानिस्तान की 20 साल की जंग में अमेरिका इन्हीं बेसिस को यूज करता रहा। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने अपना दूसरा हमला इराक के सद्दाम हुसैन पर किया। ये हमला भी अमेरिका ने अपने इन्हीं बेसिस से किया और फिर अपने इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने पूरे इराक को तबाह कर दिया। इन्हीं बेसिस से अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी करता रहा और इवन गद्दाफी को भी मारने में अमेरिका के इन बेसिस को कहीं न कहीं यूज किया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यही वो बेसिस है जिनसे अमेरिका हमेशा इजराइल को प्रोटेक्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले जब इजराइल ने गजा पर हमला किया, ये देखकर यमन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आज के बाद इजराइल की तरफ जो भी कश्ती हमारे पास से गुजर कर जाएगी हम उसे उड़ा देंगे, जिससे इजराइल की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका भी मिला था। लेकिन अब जब इजराइल की इकोनॉमी खराब हो रही थी, अमेरिका के इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने यमन पर 1000 मिसाइल फायर करके यमन को ऐसा करने से रोक दी और इस तरह अमेरिका ने इजराइल की इकोनॉमी को दोबारा ठीक किया। इन शॉर्ट अरब दुनिया में अमेरिका के इन्हीं बेसिस पिछले 40 साल से पूरी मुसलमान दुनिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है और इन्हीं बेसिस की वजह से दुनिया में कोई भी मुसलमान कंट्री अमेरिका के सामने अपना सर नहीं उठा सकती। आखिर 40 साल बाद जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया
the United States military began major combat operations in Iran. ईरान पिछले 40 साल में पहला ऐसा इस्लामिक मुल्क बना जिसने अमेरिका के इन बेसिस पर हमले किए हैं। जैसे ही जंग शुरू हुई, कहा जाता है सबसे पहले हमलों में से एक अमेरिका ने दुबई के अल दफरा एयरबेस से ईरान पर किया था। इसी तरह कुवैत और बहरीन के बेसिस से भी ईरान पर हमले किए गए। इसीलिए ईरान ने भी इसके जवाब में अमेरिका के एक एयरबेस को टारगेट करके हमले किए। Military bases have been repeatedly attacked by Iran. सबसे पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिका के बेस कैंप आरिफ जान पर हमला किया। ये अरब दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा वेयर हाउस था, जहाँ पर अमेरिका अपने ट्रक्स, टैंक्स और मिसाइल स्टोर किया करता था, और यहीं से अमेरिका के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल फिट किए जाते थे। ईरान के हमलों के बाद सिर्फ कुछ लोगों के बजाय बाकी अमेरिका की पूरी फौज ये बेस खाली करके भाग गए और कुवैत के होटलों और बिल्डिंग्स भी छुप गए। इसी तरह ईरान ने इराक में भी अमेरिका के बेसिस पर हमले की, और यहाँ पर ईरान ने अमेरिका का एक बहुत बड़ा रीफ्यूलिंग जेट तबाह कर दिया। तीसरा हमला ईरान ने कतर में अमेरिका के बेसिस पर किया, और कतर में अमेरिका का ये बेस अमेरिका की फौज का सबसे बड़ा बेस था, और यहाँ पर ईरान के हमलों से अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम तबाह हो गया, जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के अमेरिका के बेस पर भी हमला किया, और इस हमले में भी ईरान ने अमेरिका के 5 बड़े जहाजों को तबाह कर दिया। और आखिर ईरान ने यूएई में अमेरिका के बेस पर भी हमला किया, और कहा जाता है ये वही बेस है जिससे अमेरिका ने ईरान में एक स्कूल पर हमला करके ऑलमोस्ट 200 बच्चियों को शहीद कर दिया था। ईरान ने ये हमले बहुत ही सोच समझ कर किए थे, क्योंकि हमलों से पहले ईरान इन अमेरिका के बेसिस की तरफ 50 या 60 ड्रोन्स भेजता था, और अमेरिका के बेसिस के डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में बिजी हो जाते थे। और जब ये डिफेंस सिस्टम बिजी होता था, तब ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन बेसिस पर हमला करता था। ये ऐसे मिसाइल्स जो साउंड की स्पीड से भी तेज जाते हैं। लेकिन ईरान के इन सारे हमलों में एक बहुत बड़ा मसला था। ये सारे मिसाइल और ड्रोन सिर्फ अमेरिका के बेसिस पर नहीं, बल्कि अरब कंट्रीज के कुछ बिल्डिंग्स और होटलों पर भी लगे, जिनमें से कुछ के लिए तो ईरान के प्रेसिडेंट ने माफी भी मांगी, message apologizing to Iran's Arab, लेकिन बाकियों के लिए ईरान ने कहा कि हमने ये हमले किए ही नहीं। तो फिर क्वेश्चन ये कि आखिर कहाँ से अरब कंट्रीज में ये हमले हो रहे हैं। कहा जाता है कतर, सऊदी और यूएई में बहुत सारे इजराइल के ऐसे एजेंट्स पकड़े गए हैं जो इन अरब कंट्रीज में धमाके करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये धमाके ईरान ने किए हैं। In Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's ताकि इजराइल एक बार फिर मुसलमानों में शिया सुन्नी वाली बातों को जिंदा करके मुसलमानों को आपस में लड़ा सके। इनके अलावा कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जिन्हें ईरान खुद टारगेट कर रहा है, और ईरान का कहना यह है कि इन बिल्डिंग्स में CIA और मोसाद ने अपने सीक्रेट ऑफिस बनाए हुए हैं, और अमेरिका के इन बेसिस पर इतने प्रिसाइज हमले करने से ईरान ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक अमेरिका के बेसिस इन मुसलमान कंट्रीज में रहेंगे, ये जंग इसी तरह चलती रहेगी। Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. And they've succeeded.